دور قرآن 2021 ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری بہن شمع تلاوت کریں گے۔ شمع، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ مریم کی آیت 1 to 5 تلاوت کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ ترجمہ: کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ہماری پیاری بہن شمع، اللہ آپ کو علم نافع عطا کرے۔ میں اب ہماری پیاری سی ٹیچر شاہینہ پروین کو تفسیر کے لیے بلاتی ہوں۔ شاہینہ باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ جیسا کہ ابھی تلاوت کی گئی ہے سورہ مریم کی، آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم اور اس کی شارٹ تفسیر دیکھیں گے۔ سورہ مریم نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عورت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ قرآن کریم میں ایک عورت کے نام کی سورہ نازل فرمائی ہے۔ اور اس سورہ میں آیت نمبر 16 میں مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ نام سورہ مریم لیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول یعنی جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، وہ لگ بھگ 4 یا 5 نبوی کی شروعات کا ہی دور تھا، جب ہجرت حبشہ کے لیے لوگ جانے والے تھے، لیکن ایک زمین تیار کی جا رہی تھی، اور اسی وقت میں یہ سورہ کو نازل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو اس سورہ کے نازل ہونے تک کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے،
लेकिन उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे उन मुसलमानों पर कि तौहीद की दावत कबूल करने के पर। कुछ लोग उसमें से अच्छे घराने से थे, कुछ लोग जो थे कि गुलाम तबके से थे, और तरह तरह के शदीद जुल्म उन पर ढाए जाते थे, उनको मारा पीटा जाता था, भूखा प्यासा रखा जाता था, और उनको तौहीद की दावत कबूल करने से रोका भी जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इज़्न से इस्लाम का दायरा बढ़ता जा रहा था और लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। ऐसे ही हालात में इस सूरह को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, क्योंकि हिजरत करने का अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उन लोगों को हुक्म फरमाया था, और वह जगह थी हफ्सा। हफ्सा एक ईसाई मुल्क था, और वहाँ का बादशाह नजासी भी ईसाई था, और वहाँ के लोग भी ईसाई मजहब को मानने वाले थे। इस सूरह को नाजिल करके अल्लाह ताला ने ईसाइयों के उस अकीदे को दुरुस्त फरमाया जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत को मानने वाले थे, ताकि जब वह लोग जो हिजरत करके वहाँ जाने वाले थे, उन लोगों को इस बात का पूरी तरह से जान लेना ज़रूरी था कि उनके मज़हब में जो कुछ चल रहा है, वह उसको अकीदा क्या है और उसको सही तौर पर कैसे पेश करना है। इस सूरह की 2 इब्तदाई जो रुकू हैं, उसको जाफिर बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में सुनाया था। जब उनसे पूछा गया था, कि जब उनके पीछे-पीछे कुरैश मक्का उनको लाने के लिए गए और उनके खिलाफ शिकायत की नजाशी बादशाह से कि कुछ लोग भाग के हमारे मुल्क से चले आए हैं और वो नया दीन गढ़ रहे हैं। और जब उनको बुला के नजाशी ने पूछा, तो जाफिर बिन अबी तालिब ने इसी सूरह मरियम की आयतें शुरू की सुनाई थी। और वहाँ जो नजाशी बादशाह थे, उन्होंने कहा कि बेशक ये बिल्कुल सही है, और ईसा अलैहिस्सलाम और जो आप बोल रहे हैं उस कलाम में कोई भी फर्क नहीं है। बिल्कुल वो लोग वो ईसाई थे जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, और अ, वही चीज जो कि उनको इंजील में, सही इंजील में थी। इसी चीज को हम अपने ज़हनों में रखते हुए अगर इस सूरह को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यह सूरह बहुत ही प्यारी सूरत है, और इसकी जो आयतें हैं बेहद खूबसूरत, और एक काफिया मिलती हुई जो कि लास्ट वर्ड जो इसका मिल रहा है, वो एक तरह के रिदम में लिखा गया है। ये अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया है। किसी की कारी की करत जब सुने इस सूरह की तो इतनी प्यारी लगती है सुनने में कि दिल मतलब बहुत ही अल्लाह ताला के इस अज़मत अल्लाह ताला के अज़मत का कायल हो जाता है। यह जो आयतें हैं, यह बिल्कुल एक पहाड़ी झरने की मानिंद है, जो कि छोटी-छोटी होती हैं और बिल्कुल उनमें तेज़ी होती है। तो उसी तरह की आयतें हैं। इंशाअल्लाह इस सूरह में देखते हैं कि क्या बताया गया है, थोड़ा-सा मुख्तसर तौर पर। पहले 2 रुकू में हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने के बाद, फिर तीसरे रुकू में हालात ज़माना के बारे में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाया गया है। फिर जैसे कि वो दावत दे रहे हैं अपने बाप और ख़ानदान को, और फिर कुफ़ारे मक्का को उन्हीं के ज़रिए सबक दिया गया है कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुल्क से निकल के तबाह व बर्बाद नहीं हुए, बल्कि वो उनका दर्जा और बुलंद हुआ, और उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर बुलंद मर्तबे को पाएँगे। और इस सूरह में वही ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र है, और इस बात की बिल्कुल नफ़ी की गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे थे। आइए शुरू करते हैं सूरह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद। जैसा कि हमें मालूम है कि ये हुरूफ़े मुक़त्तात हैं, और इनको अलग-अलग पढ़ा जाता है, और इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के पास है।
जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिक्र करो इस किताब में उस रहमत का जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे जकरिया पर किया था। रहमत क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। क्या हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने रहमत नहीं की? हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं। एक हदीस का मफहूम है कि जिसमें अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने अपने रहमत के 100 हिस्से किए, जिसमें से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में भेजा, जमीन पर भेजा और 99 हिस्सा अपने पास रखा। उसी एक हिस्से की रहमत की वजह से आज सारी मखलूक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करती है। कितना वसी है ये रहमत अल्लाह का, हम देखें तो हम सोच नहीं पाएंगे। हमारे चारों तरफ ये अल्लाह ताला की रहमत हर तरीके से बिखरी पड़ी है। हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, जबकि अभी इसी दौर में हम देख रहे हैं कि लोग और एक ऑक्सीजन के लिए आईसीयू में जाके कितने लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और कितनी बेशुमार नेमतें हैं जिन नेमतों का हम अहाता भी नहीं कर सकते, जिन नेमतों को हम गिन भी नहीं सकते। और ये ऐसी रहमत है अल्लाह की जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और अल्लाह ताला ने इस रहमत को अपने गजब के ऊपर हावी कर लिया है। जैसे कि सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को बनाया तो अपनी किताब में लिखा कि वह किताब उसके पास है और अर्श के ऊपर है, और उसमें लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। ये सारी बातें सुनने के बाद अल्लाह ताला की रहमत से हम हमेशा उम्मीदपुर रहें, हमेशा उम्मीद लगाए रहें, कभी मायूस न रहें। जब भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई मजबूरी आए तो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद जरूर करें और उससे दुआ करें कि ऐ अल्लाह अपनी रहमत मुझ पर भी नाजिल कर और मुझे इस परेशानी से निकाल। जैसा कि आगे देखते हैं कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी रब से चुपके चुपके दुआ किया। चुपके चुपके दुआ किया यानी दुआ तो हम जोर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक राजो न्याज, एक लोगों से बच के दुआ करना कि रयाकारी जिसमें नहीं हो, बिल्कुल अपने और अल्लाह के बीच में जो मुनाजात होते हैं, जो आपस में बातें होती है, उस तरह से उन्होंने दुआ की। उन्होंने क्या अर्ज किया उस दुआ में? उसने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक खुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, और ऐ परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं रहा। कितनी उम्मीद है जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ में कि एक उम्मीद के तहत वो दुआ कर रहे हैं, जबकि ये भी कह रहे हैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं आगे कि क्या मांग रहे हैं कि मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने फजले खास से एक वारिस अता कर दे जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मिरास भी पाए, और ऐ परवरदिगार, इसको एक पसंदीदा इंसान बना। जबकि जकरिया अलैहिस्सलाम जान रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अल्लाह से अपनी इस कमजोरी को बयान भी कर रहे हैं। रवायतों में बताया जाता है कि जब ये दुआ मांग रहे थे तो उनकी उम्र लगभग 110 साल की थी और उनकी बीवी जो थी वह भी बांझ थी, यानी उनको कभी कोई औलाद ही नहीं हुई थी। फिर भी अल्लाह की उम्मीद से और अपने लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तुम मुझे अपने खास फजल से, जबकि असबाब मुहैया नहीं है, जबकि कोई ऐसी में हमारे पास कोई ऐसी कुव्वत भी नहीं है और ना एक ये अमल ऐसा है जो कि जो जनरल मतलब अमल होता है, जो कि फिजिकल फेनोमिना जो होता है वो उसकी ताकत भी खत्म हो गई है। फिर भी मुझ पर अपने फजले खास कर
हम भी दुआएं मांगे तो अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी को अल्लाह ताला से पहले बयान करें, फिर दुआ मांगे। और दुआ क्या मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह ताला मुझे एक वारिस अता कीजिए। और वह वारिस किस लिए कि वह आले याकूब की मिरास भी पाए और उसे पसंदीदा इंसान भी बनाइए। नबियों की विरासत क्या होती है? माल जायदाद नहीं होती है। नबियों की विरासत वो अल्लाह की हिदायत होती है, अल्लाह की किताब होती है, अल्लाह का दीन होता है जो वो आगे तक फैलाते हैं। इसी चीज की वो दुआ मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? औलाद मांगते हैं। जब औलाद मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी हम छोड़ के जाएंगे उसको एक हमारी औलाद उससे फायदा उठाएगी और आराम से जिंदगी गुजारेगी। लेकिन यहाँ पे एक नबी जो है वह अल्लाह की दीन की खातिर दुआ मांग रहे हैं कि मुझे एक वारिस अता कर। जवाब दिया गया, ऐ जकरिया, हम तुझे एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को सुन लिया और कबूल किया और उन्हें एक लड़के की खुशखबरी सुनाई और यह भी बता दिया कि उसका नाम यहया किया। अर्ज किया, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। अल्लाह ताला ने तो खुशखबरी सुना दी, लेकिन उन्होंने अपनी इत्मीनान के लिए फिर से इस बात को अल्लाह के सामने रखा कि ऐ अल्लाह, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई अच्छी कामयाबी की खबर आती है या रिजल्ट आता है किसी बच्चे का हमारे, तो बार बार हम कभी इंटरनेट पे चेक करते हैं, कभी पेपर में आता है, कभी स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ यूनिवर्सिटी में जाके चेक करते हैं, इस बात का इत्मीनान करने के लिए कि हाँ सचमुच जो खबर है वो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, मैं जाके उसको 2-3 तरीकों से जान लूंगा। तो इसी बात की तस्दीक के लिए फिर से वो अर्ज कर रहे हैं जकरिया अलैहिस्सलाम इस बात को। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि यह तो मेरे लिए एक जरा सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तो कोई चीज ना था। अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब इंसान की पैदाइश होती है तो कुछ भी नहीं रहता है सिवाय एक हकीर गंदी बूंद के। फिर भी मैं ऐसा करूंगा जबकि तुम्हारे असबाब खत्म हो गए हैं, मैं तुझे औलाद दूंगा। जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी यह है कि तुम पहम 3 दिन लोगों से बात न कर सकेगा। यह हमने सूरह आल इमरान में भी पढ़ा, वहाँ 3 रातों का जिक्र करके 3 रातों तक बात नहीं कर, यानी 3 दिन हम इस मामले में लेते हैं कि 3 दिन और 3 रात को 3 दिन ही मांगते हैं। तो ये एक खास निशानी थी कि अल्लाह ताला ने जकरिया अलैहिस्सलाम को बताया, लेकिन यह कोई बीमारी या किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की खास इनायत थी। जैसे कि हमने पिछली सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों के बारे में देखा है कि उनका हाथ अल्लाह ताला ने कहा कि जब भी वो गिरेबान में डालेंगे तो वो चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी बीमारी के। ऐसे ही यह निशानी अल्लाह ताला ने जकरिया अलैहिस्सलाम को भी बताई। चुनांचे वह मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह व शाम तस्बीह करो। वह कोई मेहराब होगा या हुजरा होगा, वहां से निकल के वह लोगों के सामने आए और उन्होंने इशारे से उनको बताया कि सुबह व शाम की तस्बीह किया करो। हम भी तस्बीह करते हैं, यानी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला पाक है और उसकी अजमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला की तस्बीह सुबह शाम अज़कार के तौर पर भी बयान कर सकते हैं और छोटे छोटे जो अल्लाह ताला ने या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताए हैं, जैसे हम तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यह अल्लाह का जिक्र भी है और अल्लाह की पाकी भी है, जिससे कि अल्लाह ताला की अजमत बयान होती है।
تو यहाँ उस तस्बीह का जिक्र हुआ है कि सुबह व शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा। उसके बाद कैसे यहया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उसका जिक्र अभी सूरह में नहीं है, आया है कि उसके बाद आयत नंबर 12 में है, ऐ यहया किताब इलाही को मजबूती से थाम ले। कौन सी किताब है? उस वक्त बनी इसराइल से ही ये दोनों नबी थे और वह उन लोग की किताब तौरात थी। उनको ये हुक्म दिया गया है, उस वक्त तौरात ही थी, इसलिए मजबूती से थामने का मतलब कि उनके हुक्म पर अमल करना है, उसको शरीयत पर अमल करना है और उसकी तालीम भी लोगों को देना है। आज हमारे पास कुरान है, कुरान करीम के साथ भी यही हमें करना है कि हम इसके समझें, उसको पढ़ें और उस पर अमल पैरा हों और लोगों को भी इसकी तालीम देना हमारा फर्ज है। यहया अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या था, उनका मर्तबा क्या था, कितने वो अच्छे इंसान थे, इसको अल्लाह ताला खुद अपने कुरान करीम में बयान फरमा रहे हैं कि हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाजा, यानी हिकमत से नवाजा और अपनी तरफ से उसको नर्म दिली और पाकीज़गी अता की और वह बड़ा परहेजगार और अपने वालिदैन का हक शनास था। यानी अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ से हिकमत दी और उनको पाकीज़गी अता की और वो खुद ही बहुत परहेजगार थे। बताया जाता है कि एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नस्ल इंसानी में ऐसा कोई इंसान नहीं गुजरा जिसके दिल में गलत ख्याल नहीं आया हो सिवाय यहया अलैहिस्सलाम के, और वह अपने वालिदैन का भी हक शनास था। सारी क्वालिटीज को बताने के बाद वालिदैन के का हक अदा करने वाले भी अल्लाह ताला ने बताया। वह जब्बार न था और न नाफरमान था। सलाम उस पर जिस रोज की वह पैदा हुआ और जिस दिन वह मरेगा और जिस रोज वह जिंदा करके उठाया जाएगा। अल्लाह ताला खुद उनकी सलामती के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये 3 मरहले जो होते हैं वह बेहद कठिन और बेहद ही तकलीफदेह होते हैं कि जब विलादत होती है तो उस वक्त भी इंसान एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहा होता है और जिस दिन इंसान मरता है फिर इस दुनिया से वह दूसरी दुनिया में जा रहा होता है और एक दिन जबकि फिर से जिंदा अल्लाह ताला उठाएंगे तो वह आलम बरज़ख से उठ के फिर मैदान हश्र में आएगा। ये तीनों मरहले बहुत ही मुश्किल वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इन तीनों मरहलों में उन पर सलामती किया। उन पे कोई सारे लोग जब मैदान हश्र में या जब भी ये होगा तो उन पर परेशानी की हालत होगी, लेकिन इन तीनों वक्तों में यहया अलैहिस्सलाम पे सलामती अल्लाह ताला ने सलामती का अपने कुरान में उनको सलामती की आयत बताई है। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वह अपने लोगों से अलग होकर शर्की जानिब गोशा नसीन हो गई थी और पर्दा डालकर बैठकर उनसे छुप बैठी थी। मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया हमने सूरह आल इमरान में पढ़ा है कि कैसे उनकी पैदाइश के वक्त पैदाइश से पहले उनकी माँ ने नजर मानी थी कि जो भी औलाद होगी उनके दिल में ये था कि लड़का होगा तो मैं उसे हैकल सुलेमानी की खिदमत के लिए नजर करूंगी। लेकिन जब उनकी वो औलाद हुई तो एक लड़की थी। हम पढ़ा है कि कैसे उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह ये तो लड़की है, और उन्होंने ये दुआ भी पढ़ी कि मैंने इसे शैतान मरदूद से आप अल्लाह की पनाह में दिया है। फिर भी उन्हें अपनी मन्नत के मुताबिक जो नजर मानी थी उसके मुताबिक हैकल सुलेमानी के खिदमत में दिया और उनकी कफालत उनके खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम करते थे। तो ये उनके यंग एज का यहाँ पे जिक्र है कि जब वो जा करके उसी हैकल सुलेमानी में कोई ये होगा शर्की गोशा मशरकी गोशा, वहां पे जाके वो बैठ गई पर्दे के लिहाज से और पर्दा कर लिया। इस हालत में हमने उनके पास रूह को यानी फरिश्ते को भेजा और वह उसके सामने एक
पूरे इंसान की शक्ल में नामुदार हो गया। जब वह अकेली थी और पर्दा भी करके बैठी थी, तब एकाएक अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा और वह बिल्कुल इस इंसानी शक्ल में आया। पहले भी हम जानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के पास भी फरिश्ते इंसानी शक्ल में भेजे गए थे, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ये इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। मरियम एकाएक बोल उठी कि अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, क्योंकि वह अकेली थी और एक नौजवान लड़की, और जब उन्होंने देखा कि एक इंसान है तो उनको थोड़ा खौफ महसूस हुआ और उनकी हया भी की गैरत भी जाग उठी, और वह बोल उठी कि अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है तो हम अपनी हया और इज्जत को बचाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ यह सेल्फ चेकिंग की बात है, क्योंकि औरतें होती हैं कमजोर, कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, खास तौर से नौजवान लड़कियों, नौजवान औरतों के लिए यह ऐसा मौका बहुत ही मुश्किल का होता है। तो हमें क्या करना चाहिए या क्या करती हूँ, ये जरूर इसके लिए सेल्फ चेकिंग करनी चाहिए। फरिश्ते ने कहा, उसने कहा, मैं तेरे रब का परस्तादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। क्योंकि मरियम तो अलैहिस्सलाम शादीशुदा भी नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो पाक दामनी का हवाला दिया कि मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम यह इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और यह काम होकर रहना है। मरियम अलैहिस्सलाम ने को जब फरिश्ते ने ये बात बताई और जो थोड़ा सा खौफ और ये से उनको इत्मीनान हुआ, तब तफसीर में बताया गया है कि अल्लाह ताला के कलाम को कलमतुल्लाह कहा गया था ईसा अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्ते ने उनके गिरबान में फूंक मारा। मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और वह उस हमल को लिए हुए एक दूर के मुकाम पे चली गई। जब वो वहां थी बैतुल मुकद्दस से, वो बताया जाता है कि 8 किलोमीटर दूर किसी बस्ती में चली गई, क्योंकि एक नौजवान लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है और उसको कितने ताने मिलते, इस डर से और इस शर्म से वह वहां से निकल के दूर चली गई। फिर जस्की की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया, और जब उनको लेबर पेन होने लगा तो एक खजूर के दरख्त के पास गई कि जैसे सहारा लेने के लिए, आमतौर पे जैसे जब लेबर पेन उठता है तो औरतें सहारा लेने के लिए किसी चीज को पकड़ती हैं। वह कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नाम व निशान न रहता। नसिया मनसिया जो उस चीज को कहते हैं, आयत नंबर 23 में है कि जिसको लोग भुला दें, बिल्कुल उसका जिक्र ही नहीं हो। वो शर्म के मारे वो कहने लगी, क्योंकि उनको खौफ था कि चाहे अल्लाह की तरफ से ही ये चीज मिली, लेकिन फिर भी समाज का खौफ, लोगों का खौफ कि ताने देंगे, इसलिए वो कह रही हैं कि काश मैं मर जाती और मेरा नाम निशान भी नहीं रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है और तुम जरा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही उनके लिए उस बियाबान में इंतजाम कर दिया कि एक फरिश्ता बोला कि गम ना कर, और तेरे रब ने तेरे नीचे, यानी किसी बुलंदी पर थी और नीचे से फरिश्ते ने पुकारा कि तेरे रब ने तेरे लिए पानी का भी इंतजाम कर दिया और खजूर के तने को हिला, जो कि अल्लाह ताला की बरकत से वह उसमें से जो है कि फल गिरेंगे और बिल्कुल तरोताजा फल।
जैसा कि हमने जानते हैं कि जो खजूर होती है वो कितनी ज्यादा ताकत वाली गजा है, और है जो निफास या गंदगी जो खून की होती है उसको साफ करती है। तो अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम कर दिया, और फिर अपनी आंखें ठंडक कर एक बच्चे के विलादत के बाद माँ को जो भी तकलीफें गुजरती हैं, उसके बगल में बच्चा आ जाता है तो फिर वो सारी तकलीफें भूल जाती हैं और उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो उसको फरिश्ते ने इस बात को कहा अल्लाह ताला के जरिए से। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आ जाए तो उससे कह दे कि मैं रहमान के लिए रोजे मानती हूँ, नजर मानी हूँ, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। उस जमाने में शायद चुप का रोजा भी रखा जाता था, या रोजे के साथ बोलना भी बंद रहता हो। आज के लिए कितना मुश्किल होता अगर वाकई चुप का रोजा होता, तो हम औरतों के लिए खास तौर से। फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ऐ मरियम, यह तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ऐ हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। जैसे कि होना ही था कि एक गैर शादीशुदा लड़की एक बच्चे को लेके आती है, तो फिर जो सोसाइटी के लोग होते हैं इस तरह की बातें कहते हैं, तो ऐसा उन लोगों ने भी कहा। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि ये रवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनको वही के जरिए से इस बात की आगाही कर दी थी कि तुम जैसे कि ये चुप रहने के लिए भी कहा, और ये भी वही कर दी थी कि तुम बच्चे की तरफ इशारा कर देना। तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें, जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। अक्सर लोग कहें एकदम छोटा सा बच्चा, अंगूठा चूसता हुआ बच्चा, ये कैसे बोलेगा और क्या करेगा। लोगों ने ताज्जुब किया। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया और बाबरकत किया। जहाँ भी मैं रहूं, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बच्चे थे, अल्लाह के इज़्न से वो बोल उठे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, नौजुबिल्लाह। यहाँ इस बात की बिल्कुल नफी हो जा रही है जो लोग उनको अल्लाह का बेटा बनाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उसने मुझे किताब दी यानी इंजील दी और नबी बनाया और बाबरकत हूँ, मैं जहाँ भी रहूँ। और नमाज की भी तलकीन और ज़कात यानी मैं पाक साफ हूँ, यहाँ ज़कात से तज़किया का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। और मैं अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया, यानी यहाँ वालिदा का जिक्र है, वालिदैन का जिक्र नहीं है। ये भी एक चीज नफी है उस चीज की कि वह अल्लाह ताला के बेटा नहीं है। सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम इब्ने ईसा मरियम हैं, और वो अल्लाह अपने वालिदा के हक अदा करने वाले हैं। और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है उन तीनों वक्तों पर जबकि अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त में जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। और ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि हम जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया है, और इंशाल्लाह करीब क़यामत के वक्त वो उनका नज़ूल होगा और फिर वो दुनिया में आएंगे, फिर उनको मौत आएगी। यह है ईसा इब्ने मरियम, और यह है उसके बारे में वह सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। बिल्कुल सही सही बात जो हमारे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बता दी है। जो लोग बात बनाते हैं इंजील के जरिए से, अल्लाह का यह काम नहीं है कि वह किसी को बेटा बनाए। वह पाक जात है। जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और बस हो जाती है। यानी अल्लाह ताला बस फैसला कर लेता है और कुन फयकुन के जरिए वो बात हो जाती है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है, बस तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ गिरोह बाहम इख्तलाफ करने लगे। सो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वह वक्त बड़ी तबाही का होगा, जबकि वह एक बड़ा दिन देखेंगे जब वह हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज यह जालिम खुली गुमराही में मुब्तला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ آئے گا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ گروہ جو بٹنے والے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا، اور آج بھی ان کے محبت میں گروہ بٹ گئے ہیں، ان کے گلو میں گروہ بٹ گئے ہیں، اور ہمارے بھی فرقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جو اختلاف ہے، جو الگ الگ چیزوں کے بارے میں گروہ بٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حشر کے میدان میں جب سب اکٹھے ہوں گے تو سب دیکھ لیں گے اس چیز کو، اور اس روز بالکل ان کی کان سنی، یعنی اس دن بالکل انسونا نہ کر پائیں گے، ساری چیزیں ان کے سامنے ہوگی، اور نہ تو پچھتاوے کا کوئی وقت وہ ہوگا کہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم اس بات کو مان لیے رہتے، اور ہم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم ہی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور اللہ ہی کی طرح ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں میں رکتی ہوں، دوسرے رکوع اور آیت نمبر 40 پہ 41 سے ہماری ٹیچر فرحت آگے کنٹینیو کریں گی انشاءاللہ۔ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔